All right. So let's start with today's webinar. Okay. So first of all, I am Professor Sandeep Gupta from Engineering Minds. Okay. And I welcome you all. I also welcome the students of MJ College on behalf of Yogesh sir and Deven sir. Okay. We are conducting this seminar and welcome everyone else also. Now, ये जो वेबिनार है ये नॉर्मली 3 घंटे का होता है, 3 hours का होता है. But sitting for 3 hours straight in an online webinar is very, very, very difficult. Okay. So what we have done is we have splitted this webinar into 3 parts. All right. तो ये सब मैंने WhatsApp ग्रुप पे डाला है. I'm sure आपने रीड किया होगा. So I suggest that you sit with a pen and paper. Or if you don't have a pen and paper, then sit with a cell phone. If you have any queries, don't send the queries right now on the chat. Okay. Please don't ask me the queries during the webinar. Write those queries on a piece of paper. Okay. And webinar ho jane ke baad, I will be here for another 10-15 minutes. And that time you can ask me your queries. Okay. So let's start without wasting any time. Okay. Now, you guys are not sitting in front of me, so I would not know whether you are reading this or not, but I want you all to read this next screen. Okay. So please, if you're sitting at your home or wherever, please read this loudly. तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि if you want to get into engineering, you will get into engineering. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग एडमिशन इन इंजीनियरिंग. वहां तुमको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा. ओके. उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ओके. सो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर माइंड कुड बी कि अगर मुझे एनीवे एडमिशन मिलने ही वाला है तो व्हाई द हेल एम आई अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर वेबिनार. So the answer is you're attending this webinar to maximize your chances of getting into a better college. अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है विदाउट अटेंडिंग दिस वेबिनार अगर तुमको मिलने वाला था कॉलेज नंबर 10. ओके. तो आफ्टर अटेंडिंग दिस वेबिनार तुमको शायद मिले कॉलेज. आई एम This is my, please take this as my last warning. If I see your mic is or video is on, I will be compelled to remove you from the meeting. Payal Shah, Amit Jagani. Okay, please keep your mic off. Okay. So, what I was saying is that without attending this webinar, अगर तुमको मिलने वाला था कॉलेज नंबर 10, तो आफ्टर अटेंडिंग दिस वेबिनार तुमको मिलेगा शायद कॉलेज नंबर 7 या कॉलेज नंबर 8. डेफिनेटली कॉलेज नंबर 1 तो नहीं, बट 7-8 डेफिनेटली मिलेगा. ओके. क्यों? Because in this webinar, we are going to discuss some tips, some techniques of enhancing your chances of getting into a better college. Not only that, in these 3 parts of the seminar, we will also talk about how to save some money of yours, okay, if you fall into some particular category. Chalo, anyway, without wasting any time, let's start with the actual content. And I would want you to be interactive. So when I'm asking you questions, you can unmute yourself momentarily and you can answer my questions और फिर से तुम अपना mic mute कर दोगे. ठीक है? So now कैसा है ना, तुम्हारा जो एडमिशन प्रोसेस है ना, तुम्हारा जो एडमिशन प्रोसेस है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी कंडक्टेड बिटवीन 1st July एंड 1st September. तो एडमिशन प्रोसेस जब भी स्टार्ट होगा ना, वो 2 महीना चलेगा. टू बी वेरी प्रिसाइज 62 days चलेगा. ठीक है. तो अभी तो सीईटी के रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं. पहले सीईटी का रिजल्ट आएगा, उसके 20 दिन बाद एडमिशन प्रोसेस चालू होगा. तो लास्ट ईयर, आई रिपीट लास्ट ईयर, जो एडमिशन प्रोसेस था ना, इट वाज कैरीड आउट बिटवीन 14th July एंड 13th September. ओके. तो इस साल अगर कोई डिले नहीं हुआ तो शायद इस डेट्स पे एडमिशन प्रोसेस हो सकता है. अब ये जो तुम डेट देख रहे हो ना, ये टेंटेटिव डेट है. टेंटेटिव. ओके. ये कंफर्म डेट्स नहीं है. ओके. तो वॉट एवर. नाउ ये जो एडमिशन प्रोसेस है ना, अब हमको क्या करना है अपने सेमिनार में ना, जो भी हम डिस्कशन करेंगे ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 3 पार्ट्स कैसे? हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए बिफोर द एडमिशन प्रोसेस. ओके. क्या करना चाहिए ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस और क्या करना चाहिए आफ्टर द एडमिशन प्रोसेस. ओके. तो अपना डिस्कशन इसमें रिवॉल्व करेगा.
तो ऑब्वियसली लेट्स स्टार्ट विद बिफोर. सो बिफोर द एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट्स तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तुम्हारा स्ट्रीम का सिलेक्शन करना चाहिए, ब्रांच का सिलेक्शन करना चाहिए, एक कॉलेज का लिस्ट बनाना चाहिए, एंड तुमको डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए. अब ये जो तीन चीज है इसका क्या मतलब है डिटेल में एक एक करके देखेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रीम सिलेक्शन. ओके, अब स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम का मतलब होता है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द इंजीनियरिंग. सो दीज आर सम ऑफ द पॉपुलर ब्रांचेस ऑफ द इंजीनियरिंग. तो जैसे सबसे जो फर्स्ट ब्रांच है वो है सिविल, सबसे पुराना ब्रांच. देन वी हैव मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन. देन वी हैव केमिकल. देन वी हैव इलेक्ट्रिकल, electronics, electronics and telecommunication, electronics, computer science, biomedical. Then we have computer engineering, information technology, others. Now, can you tell me others में क्या क्या आता है? Can you tell me others में क्या क्या आता है? Can you tell me others में क्या क्या आता है? Any guess? चलो, can you tell me कि others में क्या क्या आता है? Come on, you can. Why? If you want to answer, you can raise your hand. I will unmute you and then you can answer. Okay, can you tell me others में क्या क्या आता है? Okay, so I would like you to answer over your mic instead of uh, on the chat, because it's not possible for me to every time pull up the chat. Okay, so any reply you can raise your hand and then you can answer the question. Okay, any answers? Yeah, Siddiqui Hamza, you can answer the question. Hamza, yes, can you tell me? So data science. हाँ, तो जैसे यस अमित, कैन यू टेल मी? AI, ML, data science. करेक्ट. ओके, Uh, ऑलराइट, लेट्स क्लियर. ओके, नर्मदा. Data analytics. राइट, राइट. ओके, सो नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ. तो अभी जो अदर्स है ना, इसमें होता है AIDS यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस. इसमें होता है AIML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. देन साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो सब. ठीक है. अब क्या है ना, अगर मुझे तुमको इन ब्रांचेस के बारे में सब कुछ बताना है ना, तो इट विल टेक अनदर 1 hour 30 minutes ओनली फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्रांचेस. तो हमने क्या किया है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो बनाया है. ये वीडियो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत बार डाला है. मैं फिर एक बार ये वीडियो कल डाल दूंगा मॉर्निंग में. एंड व्हाट यू कैन डू इज, और व्हाट यू शुड डू, यू कैन नहीं, व्हाट यू मस्ट डू इज, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो एज योर फर्स्ट होमवर्क. तो तुम्हारा आज का फर्स्ट होमवर्क ये होगा कि तुमको ये वीडियो देखना है. एंड दिस वीडियो विल नॉट ओनली एक्सप्लेन यू द ब्रांचेस, इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू फिगर आउट कि तुमको कौन सा स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग लेना चाहिए. ओके, so your first homework today is to watch this video of approximately 1 hour 20 minutes and try to decide your branch of engineering. अब क्या है ना, सिर्फ वीडियो देखने से तुम्हारा माइंड नहीं बनेगा. तो उस वीडियो में मैंने कुछ कुछ सजेशंस दिए कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो. तो अगले 10-12 दिन में तुमको वो सब करना है. एंड इन अनदर 15-20 डेज तुमको ये फाइनलाइज करना है कि तुम्हारा ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग क्या होगा. एंड एक बार वो फाइनलाइज हो गया, देन आइडियली उसके बाद तुमको वो चेंज नहीं करना है. ओके, so here we have spoken about stream selection और the branch selection. इसकी बात हमारी हो गई. ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट प्रिपेयरिंग द कॉलेज लिस्ट. देखो, अब इसका क्या मतलब है, तो सिंपल, ध्यान से सुनना. अगर तुमको इंजीनियरिंग करनी है, ओके, तो तुमको दो मेन चीजें तुमको डिसाइड करनी पड़ेगी, फाइनलाइज करनी पड़ेगी. ओके, कौन सी दो मेन चीज है? तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि विच स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग यू वांट टू गो फॉर. एंड तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि विच कॉलेज यू आर इंटरेस्टेड इन. ठीक है. अभी when we say which college you are interested in, ऐसा तो नहीं होगा कि तुमने जो भी मन बनाया उस कॉलेज में तुमको मिल जाएगा. ओके, हो सकता है तुमको चाहिए VJTI बट तुमको मिलेगा कुछ और, तुमको चाहिए DJ संघवी बट तुमको मिलेगा कुछ और. तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस बनाना पड़ेगा. एटलीस्ट 10-12 कॉलेजेस का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा.
and these are the probable colleges where you will try to get admission. ठीक है? Now, explaining you more precisely, what I would say is, क्या होगा ना, इन द मंथ ऑफ अगस्त सीईटी सेल के वेबसाइट पे तुमको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ऑप्शंस फॉर्म. ओके, in which you will have to give minimum 1 and maximum 300 options. Now the next question is, what is the meaning of the word options? Okay, so every option is a college course combination. I repeat, every option is a college course combination. अब इसका क्या मतलब है? So let's take an example where you want to do mechanical engineering. Okay, जैसे मैंने बोला अगले 20 दिन में तुमको डिसाइड करना है कि कौन सा स्ट्रीम तुमको चाहिए. ठीक है? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि तुमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, वो तुमने डिसाइड कर लिया. ठीक है? तो अब तुम क्या करोगे, अगस्त में जब ऑप्शंस फॉर्म बनाओगे ना, ऑप्शंस फॉर्म, तो उसमें तुम ऐसा ऑप्शंस डालोगे. कैसे? VJTI मैकेनिकल. ओके, VJTI इज द बेस्ट कॉलेज इन एंटायर मुंबई, प्रोबेबली एंटायर महाराष्ट्र, इट इज इन माटुंगा. फिर तुम डालोगे SPC मैकेनिकल, द सेकंड बेस्ट कॉलेज इन अंधेरी, ओके, इन भवंस कैंपस. फिर तुम डालोगे DJ संघवी, थर्ड कॉलेज, दैट इज इन विलेपार्ले वेस्ट, केलवानी मंडल का कॉलेज है. देन तुम डाल सकते हो ठाकुर कॉलेज, जो ठाकुर विलेज कांदिली ईस्ट में है. SFIT मतलब सेंट फ्रांसिस, जो IC कॉलोनी बोरेली वेस्ट में है. ठीक है? तो ये जो तुमको अभी दिख रहा है ना, आई होप यू कैन सी माई माउस पॉइंटर. आई रिपीट, आई होप यू कैन सी माई माउस पॉइंटर. तो ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये लिस्ट जो तुमको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ऑप्शंस फॉर्म. आई रिपीट, इसको बोलते हैं ऑप्शंस फॉर्म. अब देखो क्लियरली तुमको दिख रहा है कि ऑप्शंस फॉर्म में तुमको दो चीजें दिख रही है. कौन सी दो? तुमको दिख रहा है स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग, और तुमको दिख रहा है कॉलेजेस. ठीक है? तो वही मैं तुमको पिछले 10 मिनट से बोल रहा हूँ कि तुमको दो चीजें डिसाइड करनी है कि विच स्ट्रीम एंड विच कॉलेज डू यू वांट. ठीक है? अच्छा, एनीवे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो तुमको लिस्ट दिख रहा है ना, लिस्ट. ओके, सो द क्वेश्चन इज, हाउ यू विल सिलेक्ट द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है ना, ये टॉप टू बॉटम तुमको कैसे प्रिपेयर करनी है, अब हम ये सीखेंगे. क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें अगर मिस्टेक हो गया तो यू विल रिपेंट इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. तो अब इसके लिए सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा डिफरेंट कॉलेज टाइप्स. ओके, सो इन मुंबई देयर आर अप्रोक्सीमेटली 70 इंजीनियरिंग कॉलेजेस. नाउ व्हेन आई से मुंबई, मुंबई का मतलब ये नहीं होता ओनली फ्रॉम चर्चगेट टू विरार. नहीं, ऐसा नहीं है. मुंबई इज बेसिकली, जब हम मुंबई बोलते हैं ना, इट इज मुंबई, it is Navi Mumbai, it is Thane, and it is also some parts of Raigad and Ratnagiri. Okay, so मुंबई में बेसिकली कम से कम ये तीन लोकेशंस आते हैं, मुंबई, नवी मुंबई एंड थाने. ओके, तो इन सबको मिला के अप्रोक्सीमेटली 70 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं. Now these colleges can be divided into some categories. जैसे there are some colleges which are government aided, and उसका उल्टा उल्टा vice versa is unaided और private college. फिर आता है autonomous, और उसका opposite non autonomous college. फिर आता है minority, and उसका उल्टा non minority college. ठीक है? अभी अभी इसका सबका मतलब क्या है तो ये समझते हैं. ठीक है? तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा. ओके, सो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज वो कॉलेज होता है जिसको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है. ओके, एंड क्योंकि उनको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है, इसीलिए गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में जो फीस होती है वो कम होती है. सो एज एन एग्जाम्पल, अगर नॉर्मल कॉलेजेस में, चलो मैं एग्जाम्पल पे ले लेता हूँ. Now, there are two government aided colleges in Mumbai. They are VJTI and SPC. Okay, SPC का मतलब सरदार पटेल, VJTI मतलब वीर माता जिजाबाई. There is one college, government college in Pune, which is COEP, College of Engineering, Pune. On the other hand, colleges like SPIT, DJ Sanghvi, Thakur, Francis, they are unaided colleges. By the way, before I move forward, क्या है ना कि भवंस कैंपस में एक्चुअली दो कॉलेजेस हैं, SPCE, SPIT. ओके, दोनों का विंग्स जो है, दोनों की जो बिल्डिंग्स है वो चिपक चिपक के है. ओके, दे शेयर ऑलमोस्ट कॉमन वॉल. ओके, तो फर्क सिर्फ इतना है कि जो SPCE है उसमें 3 ब्रांचेस हैं, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल. SPIT में EXTC, कंप्यूटर्स, वो ब्रांचेस हैं.
SPCE ये वाला इज गवर्नमेंट एडेड एंड SPIT इज अनएडेड, ठीक है। एनीवे कमिंग बैक, तो जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है ना उसमें फीस होती है अप्रोक्सीमेटली 85,000 90,000 पर ईयर, एंड अनएडेड कॉलेजेस की फीस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स होती है, यानी ऑलमोस्ट 2 lakhs तक होती है। ओके, ऑन एन एवरेज 1.75 lakhs होती है। तो सबसे बड़ा फर्क, या मैं बोलूँ सबसे बड़ा नहीं, द डिफरेंस इन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस एंड अनएडेड कॉलेजेस इज दैट ऑफ फीस, ठीक है। अब आता है ऑटोनॉमस एंड नॉन ऑटोनॉमस। अब पहले बात करते हैं नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस की। I'll give you some examples. So something like something like TSEC, Thadomal Shani College in Bandra West, Rajiv Gandhi College in Warsaw, LR Tiwari College in Mira Road. These colleges are non-autonomous colleges. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दे फॉलो द सिलेबस ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक सिलेबस बनाया है, सबको वही सिलेबस पढ़ना है, सबको यानी जो नॉन ऑटोनोमस कॉलेजेस में है उन सबको सेम सिलेबस पढ़ना है एंड सेम एग्जाम भी देना है। तो दिसंबर में जब इन लोग का एग्जाम होगा, इन लोग का एग्जाम होगा, ओके, आई होप यू कैन सी माय माउस पॉइंटर। तो दिसंबर में जब इन लोगों का एग्जाम देख होगा ना, तो वो सेम टाइम पे होगा एंड हर स्टूडेंट सेम पेपर अपियर करेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ऑटोनोमस कॉलेजेस आर दोज कॉलेजेस जो अपना खुद का सिलेबस सेट करते हैं एंड अपना खुद का एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। भले ये लोग खुद का सिलेबस सेट करते हैं, फिर भी इनको इनको मुंबई यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है फॉर मेनी थिंग्स, ओके। तो VJTI, SPC, DJ संघवी, दे आर ऑटोनोमस कॉलेजेस। बट अगर तुम इनके वेबसाइट पे जाके देखोगे ना, ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम DJ संघवी के वेबसाइट पे जाके देखोगे तो तुमको ऐसा दिखेगा, क्या, सुनना ध्यान से, DJ संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब तुम इन कॉलेज से ग्रेजुएट करते हो ना, ध्यान से सुनना, तो तुमको जो फाइनल ईयर के बाद जो डिग्री मिलेगा ना, डिग्री, वो मुंबई यूनिवर्सिटी का मिलेगा, ध्यान से सुनना। एंड जब तुम इन कॉलेज से ग्रेजुएट करते हो तो वंस अगेन जो तुमको डिग्री मिलेगा वो मुंबई यूनिवर्सिटी का ही मिलेगा, ओके, ध्यान से सुनो। ऑटोनोमस कॉलेज से भी तुमने अगर ग्रेजुएट किया ना तो डिग्री तुमको मुंबई यूनिवर्सिटी का ही मिलेगा, ओके, इन बोथ द केसेस, ईयर ऑल्सो एंड ईयर ऑल्सो। नाउ लेट्स कम टू माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस। once again, can you unmute yourself and can you tell me minority का क्या मतलब होता है? Can you tell me? Come on, let's be interactive. ये CET एग्जाम नहीं है, तुमने अगर रॉन्ग आंसर दिया तो मार्क्स नहीं जाएंगे। सो कम ऑन, टेक अ गेस, माइनॉरिटी का क्या मतलब होता है? यस अमित, यू कैन टेल मी अमित, क्या होता है माइनॉरिटी? बोलो। एनीवन एल्स? या टेल मी अमित। यस अमित, टेल मी। एनीवन एल्स? यस सुनील, यस। Yeah, it's actually basically a community. What या happens is a certain community will have some kind of quota in that. राइट, ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। सो होता क्या है ना, बहुत सारे लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन होता है, उनको लगता है माइनॉरिटी का मतलब होता है SC ST OBC, ठीक है। सो जो SC ST OBC होता है ना उसको बोलते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी। आई रिपीट, उसको बोलते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है। अब माइनॉरिटी का क्या मतलब होता है? तो देर आर मेनी कॉलेजेस इन मुंबई, some of them are linguistic minority colleges and some of them are religious minority colleges, ठीक है। अब लिंग्विस्टिक हो या रिलीजियस माइनॉरिटी कॉलेज हो, होता क्या है कि इन कॉलेज में देर इज 51% कोटा, 51% सीट्स रिजर्व्ड फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट अ स्क्रीन। For example, Thadomal Shani College is a Sindhi minority college in Bandra West. DJ Sanghvi College is Thadomal Shani College is a linguistic Sindhi minority college. DJ Sanghvi College is a linguistic Gujarati minority college. तो इसका मतलब क्या है कि जो थर्डोमल कॉलेज है ना वह सिंधीज के लिए 50% सीट्स रिजर्व्ड है, 51% सीट्स रिजर्व्ड है। डीजे संघवी में 51% सीट्स रिजर्व्ड है गुजरातीज के लिए।
St. Francis in Borelli West and Rizvi in Bandra West are रिलीजियस माइनॉरिटी कॉलेजेस। तो उसका क्या मतलब है कि सेंट फ्रांसिस में 51% सीट्स आर रिजर्व फॉर क्रिश्चियंस एंड रिजवी में 51% सीट्स आर रिजर्व फॉर मुस्लिम्स, ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली माइनॉरिटी कॉलेज में 51% सीट्स कोई ना कोई कम्युनिटी के लिए होता है, वेयर एज इन कॉलेजेस लाइक एसपीआईटी, राजीव गांधी, वर्तक जो वसई में है, अच्छा कॉलेज है, अथर्वा जो मलाड वेस्ट में है, दीज आर नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस, यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं होता है फॉर अ कम्युनिटी। तो फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। अभी आई होप तुम सबको ये कॉलेज टाइप समझ में आ गया हो। अब इसके सिवाय ना एक और कॉलेज टाइप होता है जिसको बोलते हैं डीम्ड टू बी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी ना, उसके कुछ एग्जांपल्स है आईसीटी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी विच इज इन माटुंगा, बीजीटीआई के बाजू में है, बाजू में नहीं थोड़े दूर पे है। आरएआईटी नेरुल में है, मुकेश पटेल यानी एनएमआईएमएस विलेपार्ले वेस्ट में है, केजे सोमैया विद्या विहार, ओके, ऑलराइट, एंड एसएनडीटी जो विलेपार्ले में है। अब ये जो सब कॉलेजेस है ना, इनको बोलते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि ऑल दीज कॉलेजेस आर वन स्टेप अहेड ऑफ ऑटोनॉमस। अहेड में बी द रॉन्ग वर्ड, बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि इधर जो सिलेबस है, एग्जाम्स है, वो तो सब ऑटोनॉमस है ही, हाँ, बट इसके सिवाय तुम्हारे 4 साल के बाद जो तुमको डिग्री मिलेगा, डिग्री, ओके, दैट डिग्री विल नॉट बी ऑफ द मुंबई यूनिवर्सिटी, दैट डिग्री विल बी ऑफ देयर ओन। तो जब आरआईआईटी से तुमने अगर इंजीनियरिंग किया तो तुमको जो डिग्री मिलेगा वो आरआईआईटी का मिलेगा, इधर मुकेश पटेल का मिलेगा, ऐसे, ठीक है। नाउ ऑल्दो वी हैव केप्ट आईसीटी विद दीज गाइज, ओके, please understand ICT is way above than the remaining. So ICT is a very prestigious institute for chemical engineering, not only in Maharashtra but in entire India. So अगर इंडिया में, आई रिपीट, इंडिया में अगर किसी को केमिकल इंजीनियरिंग करना है, ओके, तो आईसीटी शुड बी कंसिडर्ड, इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, ओके। एंड बाकी जो है ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। इन सब का जो फीस होता है, फीस वो एटलीस्ट 3 टाइम्स होता है ऑफ दीज कॉलेजेस। तो ये जो कॉलेजेस हैं ये सब, ओके, जो मुंबई यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड हैं, उनका फीस अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 1.75 लाख होता है, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं मैं, जबकि इनका फीस, ओके, इनका फीस अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख होता है पर ईयर, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, ओके। नाउ okay, now let's understand one important point over here, and one very important point is कि जो माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं ना, उसमें ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट का ये एक रूल है कि किसी भी जगह पे द रिजर्वेशन कैन नॉट बी मोर देन 51%, ओके। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर माइनॉरिटी कॉलेजेस में ऑलरेडी एक कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन है, तो फिर उसके बाद ये ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन नहीं होता है, ओके। सो नाउ इफ यू आर अ गुजराती, सिंधी, हिंदी स्पीकिंग, तमिल, मलयाली, पंजाबी, क्रिश्चियन, ओके, then you should be very happy because you have some particular college where 51% seats are meant for you. उसमें भी if you're a Gujarati, a very good college is there for you, DJ Sangvi. If you're Sindhi, there are two very good colleges, Thadomal in Bandra West and Vivekanand in Chembur. विवेकानंद इज अ वेरी 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 गुड कॉलेज। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलता हूँ कि अगर तुम बोरेली में रहते हो और समझो तुमको फ्रांसिस कॉलेज मिलता है विच इज इन बोरेली वेस्ट, ओके, और उसके अपोजिट तुमको मिलता है विवेकानंद कॉलेज विच इज इन चेंबूर, तो मेरा ओपिनियन तो ये है कि यू शुड ट्रैवल ऑल द वे एंड यू शुड गो टू चेंबूर, ओके, इट इज अ वेरी गुड कॉलेज। एनीवे, सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द वेरियस कॉलेज टाइप्स, ओके। चलो अब फिर से यहाँ आते हैं। अगर तुम्हारा ध्यान है, थोड़ा भी अगर ध्यान दे रहे हो, तो बोले ये जो चीज तुमको दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? कम ऑन टेल मी, इसको क्या बोलते हैं? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी क्या बोलते हैं। नो आंसर्स होता चाहिए, टेल मी, या सैयद टेल मी। स्ट्रीम।
नहीं नहीं, ये जो ब्लैक एंड रेड में, ब्लैक एंड येलो में जो पूरा चीज है, इसको क्या बोलते हैं? यस, कम ऑन, अनम्यूट एंड आंसर, डोंट वेट फॉर माय अप्रूवल। The preference list. हाँ, इसको बोलते हैं Options. ऑप्शंस फॉर्म, ऑप्शंस फॉर्म, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमारा डिस्कशन कहाँ शुरू हुआ था। देखो, हमको है ना ये ऑप्शंस फॉर्म बनाना है, ये बहुत भूलो कि ऑप्शंस फॉर्म का और डिटेल्स हम सब्सिक्वेंट वेबिनार्स में करेंगे। तो हमारा मेन है ये ऑप्शंस फॉर्म बनाना। अब ये ऑप्शंस फॉर्म बनाने के लिए हमको ये कॉलेजेस का लिस्ट चाहिए ना। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि कॉलेजेस का लिस्ट कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? तो प्लीज ध्यान से सुनो, प्लीज बी वेरी 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 अटेंटिव, ठीक है, बी अटेंटिव। अब क्या है ना, ध्यान से सुनना। अगर तुमको एक कॉलेज का लिस्ट बनाना है ना, तो इसके दो तरीके हैं, दो तरीके। एक है ओल्ड स्कूल तरीका जो दूसरे लोग यूज करते हैं, और एक है द न्यू एज टेक्निक जो तुम यूज करो, क्योंकि तुम ये सेमिनार वेबिनार अटेंड कर रहे हो, ठीक है। जो लोग वेबिनार्स नहीं अटेंड करते हैं वो लोग वो ओल्ड स्कूल टेक्निक यूज करते हैं। अब वो ओल्ड स्कूल टेक्निक क्या है? तो सिंपल है, ठीक है। अभी कल है ना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ना ये भी चीज डालूंगा। अब ये क्या है? तो these are the cutoffs of some branches like comp, IT, mechanical, EXAC of various colleges of cap round 1। ओके, तो ये बेसिकली कट ऑफ है। जैसे VJTI का तुम देखोगे, कंप्यूटर का कट ऑफ है 99.96, IIT का है 99.91, ऐसे, ठीक है। अभी क्या है ना, वो ऑप्शंस फॉर्म बनाने का ओल्ड स्कूल तरीका क्या है? ओल्ड स्कूल तरीका ये है कि तुम क्या करो, अपना सीईटी रिजल्ट का वेट करो। जब सीईटी रिजल्ट आएगा तुमको एक परसेंटाइल मिलेगा, ठीक है। फिर तुम क्या करो, तुम ये सोचो कि इस परसेंटाइल पे मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके हिसाब से तुम एक लिस्ट बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा समझो परसेंटाइल, समझो तुम्हारा परसेंटाइल है 97 पॉइंट समथिंग, ओके। तो तुम क्या करोगे, 97 परसेंटाइल वाला कॉलेजेस देखोगे, ओके। एंड उसका तुम लिस्ट बनाओगे कि हाँ चलो, ये 97 में मेरे को मिल सकता है, 95 मिल सकता है, ये सब मिल सकता है। तो मैं क्या करूंगा, ये टेंटेटिवली ये सब कॉलेजेस का लिस्ट बनाऊंगा ऐसे। तो ये ना एक ओल्ड स्कूल तरीका है, ओल्ड स्कूल तरीका है, ठीक है। इनफैक्ट जब सीईटी रिजल्ट आता है ना, तो सीईटी रिजल्ट आने के बाद रोज रोज कम से कम हमें 10 से 12 व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि सर, मेरे बच्चे को इतना इतना परसेंटाइल आया है, अब इस परसेंटाइल पे मेरे को ये कॉलेज में ये ब्रांच मिलेगा क्या? ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन विच पीपल आस्क अस। अब क्या है ना, कि तुमको कौन से परसेंटाइल पे कहाँ मिलेगा ये कोई भी नहीं बोल सकता है, और तुमको ना ये सोचने की जरूरत है ही नहीं। अब जरूरत क्यों नहीं है ये मैं तुमको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो, ये ऑप्शंस फॉर्म है, हाँ। अब होता क्या है ना, जब तुम ये ऑप्शंस फॉर्म भरते हो ना, तो जो सीटी सेल का सॉफ्टवेयर है ना, वो तुमको सीट अलॉटमेंट करता है। तो सीटी सेल का जो सॉफ्टवेयर है ना, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर ऑफ द कंट्री, वेरी एफिशिएंट, वेरी इम्पार्शल, वेरी गुड, ओके। तो सीटी सेल का सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो देखेगा, अच्छा, इस स्टूडेंट को वीजीटी मैकेनिकल मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, तो आगे बढ़ेगा। एसपीसी मिल सकता है, नहीं मिल सकता, आगे बढ़ेगा। डीजीएस मिल सकता है, नहीं मिल सकता, आगे बढ़ेगा। ठाकुर मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। तो ठाकुर तुमको वो अलॉट कर देगा, वो सॉफ्टवेयर तुमको ठाकुर अलॉट करेगा। ठाकुर के नीचे का सब ऑप्शंस वो डिस्कार्ड कर देगा, तो तुमको ठाकुर अलॉट हो जाएगा ऐसे। अब होता क्या है, देखो, तुम ये सोचते हो कि मेरे को ये मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तुमको क्या करना है, अगर तुमको ऑप्शंस फॉर्म बनाना है ना, तो तुमको एक सिंपल रूल यूज करना है जिसको बोलते हैं 3D रूल। अब 3D रूल क्या है? तो 3D रूल स्टैंड्स फॉर ड्रीम, डिफिकल्ट, डेफिनेट। आई रिपीट, इट स्टैंड्स फॉर ड्रीम, डिफिकल्ट, डेफिनेट। अब ड्रीम, डिफिकल्ट, डेफिनेट का क्या मतलब है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी क्या है ना, ये देखो, अभी फॉर एग्जाम्पल, चलो, कैन समबडी टेल मी कि इधर वीजीटीआई का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का परसेंटाइल क्या है, एक हमने मैकेनिकल का देखते हैं।
VJTI का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का परसेंटाइल क्या है? कोई मुझे देख के बता सकता है क्या है? बोलो, कमान क्या है बोलो, कोई बोल सकता है क्या है? देख के बोलो, कमान। 99, हाँ, पूरा बोलो, पूरा बोलो, मीनिंग है 99.23, यस 1148. 99.23, ठीक है। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि तुमको तुमको आया है समथिंग लाइक 95 परसेंटाइल। हाँ, तुमको आया है समथिंग लाइक 95 परसेंटाइल और तुमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है। ओके, अब VJTI का है 99, SPC का 98, डीजे संघी का देखो 96 है, फिर केजे सुमय का 94 है, ठाकुर का 92 है। ओके, ऑलराइट। सो तुमको लेट्स से 95 परसेंटाइल आया है, 95 परसेंटाइल आया है और तुमको करना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब 3D रूल क्या बोलता है? 3D रूल बोलता है कि देख भाई, तू क्या कर, तू ऑप्शंस फॉर्म को बना, ये सीक्वेंस में ड्रीम, डिफिकल्ट, डेफिनेट। अब ड्रीम का मतलब क्या है? तो ड्रीम का मतलब क्या है, तुमको ऑप्शंस फॉर्म में सबसे पहले वो चॉइस डालना है जो तुम्हारा ड्रीम चॉइसेस है। ओके, इसका मतलब देखो, हर स्टूडेंट का ये सपना होता है कि अगर वो मुंबई से इंजीनियरिंग करे तो वो VJTI से करे, VJTI से नहीं तो वो SPC से करे, तो ये सबका ड्रीम चॉइसेस होता है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम डालोगे VJTI मैकेनिकल, फिर डालोगे SPCE मैकेनिकल, ठीक है। तो ये तुम्हारा ड्रीम चॉइसेस है। ओके, अब कोई कोई स्टूडेंट मेरे को उठ के इधर बोलेगा, सर मुझको तो सिर्फ 95 परसेंटाइल आया है। ओके, जबकि इनका कट ऑफ तो 99 था, इनका कट ऑफ 98 था, तो मुझे इधर थोड़ी मिलने वाला, तो इधर डाल के फायदा क्या है, मैं क्यों इधर ये सब डालूं? तो मैं उनको ये आंसर देता हूँ, क्यों नहीं डालने का, क्यों नहीं डालने का। ओके, डालने से तुम्हारा क्या नुकसान है? वो सॉफ्टवेयर ये देख के तुमको ऐसा थोड़ी बोलेगा, अरे पागल है क्या, अक्ल है क्या तेरे को, तूने ये डाला है। ऐसा तो बाहर आके वो बोलने नहीं वाला है ना। ओके, तो तुम्हारा क्या नुकसान है ये डालने में? हो सकता है तुम्हारा लक अच्छा हो, तुमको इधर एक सीट मिल जाए, ठीक है। सो बेसिकली ऑप्शंस फॉर्म में जो तुम्हारा पहला सेट ऑफ ऑप्शंस होता है ना, वो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो तुमको मिल सकता है तुम्हारे ड्रीम में, तुम्हारे सपने में। ओके, जिसका तुम सपना देखते हो सकता है हकीकत में कभी ना मिले, बट फिर भी तुमको वो डालना है, क्योंकि डालने से कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद तुमको वो ऑप्शंस डालना है जो तुमको लगता है तुमको डिफिकल्टी से मिल सकता है। तो जैसे अगर तुम्हारा 95 परसेंटाइल आया है, डीजे संघवी का 96 था, तो डिफिकल्टी से तुमको मिल सकता है, बट मिल सकता है, तो तुम्हारा नेक्स्ट सेट ऑफ चॉइसेस होगा ये डिफिकल्ट। और उसके बाद आएगा वो चॉइसेस जो तुमको लगता है तुमको डेफिनेटली मिल सकता है। ओके, सो अगर तुम्हारा समझो 95 परसेंटाइल है तो तुमको फ्रांसिस ठाकुर डेफिनेटली मिलेगा, तो तुम लास्ट में वो डालोगे। सो दिस इज द सिंपल 3D रूल। अब ये 3D रूल है ना, देखो क्या है ना, ध्यान से सुनना, अब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूँ, लिसन टू माय नेक्स्ट स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, ठीक है। अब ये 3D रूल है ना, लोगों को समझ में तो आ जाता है, बट लोगों को ना इसका एडवांटेज नहीं समझता है। तो 3D रूल का एडवांटेज क्या है? 3D रूल का एडवांटेज ये है कि यहाँ तुमको ना ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे परसेंटाइल पे मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम तुम सब कॉलेज डाल रहे हो। तो जब तुम सब कॉलेज डाल रहे हो तो फिर तुमको कुछ ना कुछ तो मिलना ही है। और सोचने का काम तुम्हारा नहीं है, सोचने का काम वो सॉफ्टवेयर का है। तो सॉफ्टवेयर को सोचने दो ना, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तुम क्यों सोचते हो? ठीक है। अब इधर एक और मैं तुमको बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, एंड देन आई ऑल्सो शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट विद यू। इधर जो भी तुम फर्स्ट ऑप्शन डालोगे ना, फर्स्ट ऑप्शन, वो तुम्हारा है ना, अगर तुमको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है, अगर तुमको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है, तो वो फर्स्ट ऑप्शन ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ओके, अब इसके बारे में हम है ना कल परसों डिटेल में बात करेंगे, बट फिर भी मैं तुमको ब्रीफली बताता हूँ ऑटो फ्रीज का क्या मतलब होता है। तो ऑटो फ्रीज का मतलब ये होता है कि जो भी तुमने फर्स्ट ऑप्शन डाला, फर्स्ट, अगर वो ऑप्शन तुमको मिल गया, तो देन महाराष्ट्र का सीईटी सेल तुमको एडमिशन प्रोसेस से बाहर निकाल देगा। यू आर कंपल्सरली आउट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। और उसके बाद तुमको वो फर्स्ट ऑप्शन
लेना ही पड़ेगा। अगर तुमने नहीं लिया तो दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ द एंटायर प्रोसेस, फिर तुमको और कुछ नहीं मिलेगा थ्रू द सीईटी सेल, ऐसा होता है। ठीक है। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग तुमको एनेक्डोट सुनाता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ। So 8 9 years ago, I had my classes in Mulund also. Mulund, okay. So if anybody of you is from Mulund, तो Mulund में स्टेशन के पास एक तक्षशिला कमर्शियल सेंटर है, ओके। कोणार्क दर्शन के थोड़े बाजू में, ओके। आई एम श्योर यू नो दीज प्लेसेस। सो वहाँ मेरा क्लासेस था, स्टडी सर्कल नाम से, स्टडी सर्कल। सो मेरे पास एक स्टूडेंट आता था, विवेक पांचाल करके, एंड ही यूज्ड टू लिव इन डोंबिवली, एंड ही यूज्ड टू गो टू कॉलेज इन मलाड वेस्ट, अथर्वा। अब अथर्वा जो कॉलेज है ना, इट्स नॉट अ ग्रेट कॉलेज, इट इज ऑलमोस्ट एन एवरेज कॉलेज, यानी पूरे मुंबई में 14 15 नंबर का कॉलेज है, एवरेज कॉलेज है ऐसा, ठीक है। तो डोंबिवली से मलाड वन वे ट्रैवलिंग ना ऑलमोस्ट 2 आवर्स होता है, 2 आवर्स, ठीक है, वन वे ट्रैवलिंग। तो वो जो विवेक है ना, वो दिन का 4 घंटा ट्रैवल करता था। तो मैंने उसको पूछा कि तेरे को सीटी परसेंट कम अच्छा तभी ना परसेंटाइल नहीं होता था, तभी स्कोर होता था। तो मैंने उसको पूछा तेरे को सीटी स्कोर कम आया क्या कि तू इतना दूर ट्रैवल करके जाता है? तो उसने कहा नहीं सर, मुझको तो 163 आया, 163 या 165 कुछ तो उसने बोला आया। तो 163 इज अ वेरी गुड स्कोर। तो मैंने उसको बोला तो तुझको तो विवेकानंद या केजे सोमाया साइन इजीली मिल जाता, एंड तू डोंबिवली में रहता तो तेरे लिए वो इजियर होता। तो उसने बोला हाँ सर, ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका स्कोर मेरे से कम है, बट उनको विवेकानंद मिल गया, उनको साइन केजे सोमाया साइन मिल गया, और मेरे को अथर्वा जाना पड़ रहा है। तो आई आस्क्ड हिम क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो व्हाट ही सेड इज कि सर मैं ना एक सेमिनार में गया था। ऑब्वियसली हमारा सेमिनार नहीं था, किसी और टीचर का था। तो उस सेमिनार में मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि सेमिनार के बाद मैंने सर से बात की, रुक के मैं सेमिनार के बाद रुका था और मैंने वो सर से, वो जो स्पीकर था उससे मैंने बात की। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस, मैंने उसको पूछा क्या बात की? तो उसने बोला कि मैंने सर को पूछा कि सर ये मेरा ये स्कोर है, मेरे को कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, तो मैं ऑप्शंस में पहला ऑप्शन क्या डालूं? तो सर ने बोला कि अच्छा तेरा ये स्कोर है ना, तो तू पहला ऑप्शन डाल दे अथर्वा मलाड, ओके। एंड मैंने वही किया, एंड अनलकीली मेरे को वो अथर्वा मलाड अलॉट हो गया कि वो मेरा फर्स्ट ऑप्शन था। क्योंकि वो मेरा फर्स्ट ऑप्शन था, वो ऑटो फ्रीज हो गया, एंड आई वॉज आउट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस, एंड आई वॉज स्टक विथ इट द होल लाइफ, ओके। तो ऐसी गलतियां तुम्हें नहीं करनी है। तो एक सिंपल रूल तुम याद रखो कि जो तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन होगा ना, फर्स्ट ऑप्शन, वो फर्स्ट ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में तुम श्योर हो कि वो तुमको कभी नहीं मिलेगा। आई रिपीट, ऑलवेज योर फर्स्ट ऑप्शन शुड बी दैट ऑप्शन विच यू आर श्योर दैट यू विल नेवर एवर गेट इट, क्योंकि वो ऑटो फ्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर तुमको ये सब समझ में आ गया, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो लिस्ट है ये कैसे बनाने का, ध्यान से सुनना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, थिंग्स आर बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये सब लिस्ट बनाने का कैसे, बनाने का कैसे? तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि तुम खुद से रिसर्च करो, यानी हर कॉलेज के वेबसाइट पे जाओ, सीटी सेल के वेबसाइट पे जाओ, कट ऑफ देखो, लोगों से बात करो, प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखो, एंड अकॉर्डिंगली लिस्ट बनाओ, ठीक है। एंड ये लिस्ट बनाने का दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है कि तुम हम पे ट्रस्ट करो। आई रिपीट, दूसरा तरीका ये है कि तुम इंजीनियरिंग माइंड्स पे ट्रस्ट करो। नाउ व्हाट एग्जैक्टली एम आई ट्राइंग टू टेल यू? तो देखो क्या है ना, हमारे इंस्टीट्यूट ने, इंजीनियरिंग माइंड्स ने एक ऑप्शन लिस्ट जनरेटर, एक रेडीमेड ऑप्शन लिस्ट जनरेटर बना के रखा है, ओके। सो लेट मी वॉक यू थ्रू इट। So this is our website www.engineeringminds.in, ठीक है, engineeringminds.in। अब जब तुम इस वेबसाइट पे जाओगे ना, तो होम पेज पे तुमको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। अब होम पेज पे ये देखो क्या है, ये बोल रहा है कि यूज अवर ऑप्शन लिस्ट जनरेटर हेल्पिंग थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स अक्रॉस मुंबई। जब तुम लर्न मोर पे क्लिक करोगे ना, जब तुम लर्न मोर पे क्लिक करोगे ना, तो ऐसा एक पेज ओपन होगा। इस पेज पे एक YouTube वीडियो है, सो आई सजेस्ट कि ये YouTube वीडियो एक बार देख लेना, ठीक है। अब जब इस पेज को तुम स्क्रॉल करोगे, इसी पेज को जब तुम स्क्रॉल करोगे,
तो नीचे तुमको ना ऐसे सब बटन्स दिखेंगे, ये सब बटन्स दिखेंगे। ओके, अब याद करो, आज सेमिनार के बिगनिंग में मैंने तुमको क्या कहा कि जो भी तुम्हारा स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग है, ओके, वो तुमको फाइनलाइज कर लेना है। ठीक है, तो अब तुम क्या करो, तुम्हारा समझो स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग फाइनलाइज हो गया है, हाँ। तो जो भी तुमको स्ट्रीम चाहिए ना, वो बटन पे तुम क्लिक करो। तो समझो तुमको कंप्यूटर्स आईटी ये चाहिए, ठीक है। तो अभी तुम्हारा स्ट्रीम तो फाइनलाइज हो गया है ना, तो अब तुम इस पे क्लिक करो, कंप्यूटर्स आईटी, इस पे तुम क्लिक करो। तो जब तुम इस पे क्लिक करोगे ना, देखो ऐसा एक टेबल दिखाई देगा, ऐसा एक टेबल दिखाई देगा। ओके, अब मैं इस टेबल को थोड़ा जूम करता हूँ। ओके, थोड़ा जूम करके हम देखेंगे ना, तो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल दोस कॉलेजेस जो कॉम्प आईटी एंड सिमिलर ब्रांचेस को ऑफर करता है, जैसे विजेटीआई, एसपीआईटी, डीजे संगीत, थर्डोमल एंड सो ऑन। अब इधर है ना, देखो हमने फिल्टरिंग भी की है, जैसे वेस्टर्न सर्व्स का कॉलेजेस अलग से दिया है, देखो ये देखो, ये सब वेस्टर्न सबर्ब्स, विजेटीआई, एसपीआईटी, डीजे संगीत, थर्डोमल। वैसे सेंट्रल अलग से दिया है, नवी मुंबई अलग से दिया है, ठीक है, एंड ऑल कॉलेजेस भी दिया है। अब तुम में से कोई कोई मेरे को, अच्छा बाय द वे, इधर मैंने लोकेशन भी दिया है, ये कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज है कि नहीं वो भी मैंने दिया है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन। अब तुम में से कोई कोई मुझे बोल सकते हैं कि अरे सर, इसमें क्या है, ये तो खाली आपने बस एक टेबल बनाया है, उसमें कॉलेजेस डाला है, इसमें बड़ी बड़ी बात क्या है। तो बड़ी बात ये है कि ये जो तुम टेबल देख रहे हो ना, ये टेबल ऐसा रैंडम सीक्वेंस में नहीं है। इसमें जितने भी कॉलेजेस है ना, दे आर लिस्टेड यूजिंग द 3D रूल। ओके, फ्रॉम द बेस्ट टू द वर्स्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी सीटी का रिजल्ट आने वाला होता है ना, उसके 2 महीने पहले हम लोग अपना रिसर्च स्टार्ट करते हैं। रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर कॉलेज का कट ऑफ देखते हैं। नॉट ओनली कट ऑफ, हमारे पास हर साल एटलीस्ट 250 स्टूडेंट्स होते हैं हु आर डूइंग इंजीनियरिंग। ओके, every year we have at least 250 students who are currently doing engineering, ठीक है। तो वही नहीं, हमारे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं, उनसे फीडबैक भी लेते हैं कि भाई तुम्हारे कॉलेज का प्लेसमेंट्स कैसा है। अब तुम सोचो कि स्टूडेंट से क्यों फीडबैक लेते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट का जो डेटा होता है वो तो हर कॉलेज के वेबसाइट पे लिस्टेड होता है, ठीक है। तो कल अगर टाइम मिला तो मैं तुमको बताऊंगा कि कॉलेज के वेबसाइट पे जो प्लेसमेंट का डेटा होता है ना, मेनी टाइम्स इट इज हाफ ट्रूथ, वो फॉल्स होता है, ठीक है। एनीवे चलो वो बात कल करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हर साल कट ऑफ देखते हैं, स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं अबाउट द रियल प्लेसमेंट। ओके, फिर फीडबैक लेते हैं अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज, एंड यूजिंग ऑल दैट डेटा हम लोग अपनी खुद की एक लिस्ट बनाते हैं, और वो लिस्ट इधर मैंने दिया है। तो अगर तुम ध्यान दे रहे हो, अगर तुमको समझ में आ रहा है ना, तो राइट नाउ while sitting at your home you will really clap for us. Okay, why? Because 20-25 दिन इन्वेस्ट करके जो लिस्ट तुम बनाने वाले थे ना, वो अब रेडीमेड तुमको यहाँ मिलेगी। तो देखो अब तुम्हारा काम कितना आसान हो गया। तुमको घर बैठे बैठे तुमको वीडियो देखना है, स्ट्रीम फाइनलाइज करना है, एंड लिस्ट इधर रेडीमेड तुमको दिया है। तो ये बेसिकली ऐसा समझो एक ब्रह्मास्त्र है जो तुम्हारे हाथ में आया है। ओके, ऑलराइट। तो अब देखो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, बार बार ये चार्ट तुम्हारे सामने आ रहा है कि एडमिशन प्रोसेस के पहले तुमको स्ट्रीम सिलेक्शन करना है, कॉलेज की लिस्ट बनानी है, एंड तुमको डॉक्यूमेंटेशन करना है, ठीक है। स्ट्रीम सिलेक्शन, ये देखो इसकी बात हो गई, प्रिपेयरिंग कॉलेज लिस्ट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की। अब मैं क्या करूंगा, कल कल तुम कल सुबह तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे वो वीडियो डालूंगा जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, प्लस मैं ना एक पीडीएफ डालूंगा। तो इन दैट पीडीएफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन वो लिखा हुआ है, एंड प्लस वो डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए ना वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो तुमको क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट लिस्ट देखना है, एंड कल रात को अपना वेबिनार का सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट में ना मैं ये डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा, बट मैं चाहूंगा कि उसके पहले तुम एक बार वो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट देख लो, ठीक है। तो ये लिस्ट में कल डालूंगा, वो तुमको देखना है, रीड करना है, हार्डली 5 मिनट का काम है, ठीक है। सो फाइनली वी हैव नाउ फिनिश्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू व्हाट टू डू बिफोर द एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये ड्यूरिंग की, कि ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस वो जो 2 महीने होंगे ना, तभी क्या करना है, ठीक है। सुनो,
अब क्या है ना, तुम्हारा जो एडमिशन प्रोसेस है ना, वो 3 फेजेस में चलेगा। फेज 1 जिसको बोलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फेज 2 कैप राउंड्स, एंड फेज 3 ILS प्लस वैकेंसी राउंड। फेज 1 जो होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 25 डेज चलता है। फेज 2 ओके अप्रोक्सीमेटली 30 डेज चलता है। फेज 2 में 3 कैप राउंड्स होते हैं, 1 2 3 ओके। ईच कैप राउंड विल गो ऑन फॉर 10 डेज, तो वैसे 30 डेज, वैसे 30 डेज, ठीक है। और उसके बाद होता है ILS यानी इंस्टीट्यूट लेवल सीट प्लस वैकेंसी राउंड, जो 7 डेज चलता है, 7 डेज चलता है, ठीक है। अब तुम इन तीनों को अगर टोटल करोगे तो ये होता है 62 डेज, 62 डेज, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस जब भी स्टार्ट होगा ना, जब भी वो 62 डेज यानी 2 महीने वो चलेगा, ठीक है। अब क्या है ना, ये सब अगर हमको डिटेल में समझना है ना, डिटेल में ओके, तो इसके लिए अपने को 1.5 घंटा, 1 आवर 1 आवर 30 मिनट्स अपने को चाहिए, 1 आवर 30 मिनट्स अपने को चाहिए, ठीक है। तो ये जो डिस्कशन है ना, ये हम 2 पार्ट्स में करेंगे, टुमारो एंड ऑन फ्राइडे, ठीक है। अभी कैसे है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो लोग फर्स्ट पार्ट अटेंड करते हैं, फिर उनको लगता है हाँ सब हो गया, एंड देन सेकंड एंड थर्ड पार्ट दे डोंट अटेंड। बट दिस इज लाइक अ मूवी वेयर द क्लाइमैक्स इज मोर इम्पोर्टेंट इन द बिगनिंग, ओके। तो ट्रस्ट मी कि आज का वेबिनार अगर तुम बैठते हो तो उसके बाद ये वाला बैठना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल जो एडमिशन प्रोसेस है ना, वो हम वेंसडे एंड फ्राइडे को करेंगे, ओके। सो जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि details of the entire rounds, okay, will be done in the 2 subsequent webinars tomorrow and Friday 9 p.m. to 9:45 p.m. ठीक है। तो ठीक है, ये जो एडमिशन प्रोसेस है इसका भी हमने एक ब्रीफ डिस्कशन कर लिया। तो अब बिफोर हो गया, ड्यूरिंग हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस आफ्टर द एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। नाउ ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन, ओके। क्या है ना, तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस जब हो जाएगा तो तुमको ऑब्वियसली कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो so this is you okay. You are very happy that you got into a college of your choice, you got into a branch of your choice, and you are very happy, and this is your winning dance, and this is your winning dance, okay. You're very happy. Now I want you all to read the next thing with me, okay. तो although you are sitting at home, okay, चलो एक साथ ये रीड करते हैं। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है getting into engineering is not difficult, engineering is difficult, the real battle starts now, the real battle starts now, okay. अब इसका क्या मतलब होता है, प्लीज ध्यान देना, बिकॉज बार बार मैं बोल रहा हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? आज का देखो सेमिनार का फर्स्ट स्लाइड याद करो, क्या था? आज के सेमिनार का फर्स्ट स्लाइड ये था कि अगर तुमको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो तुमको डेफिनेटली एडमिशन मिलेगा, उसका तो है ना, कोई डाउट ही नहीं है। तो वो एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलने के बाद क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। अब क्या होता है ना, जैसे ही तुम इंजीनियरिंग में आते हो ना, सबसे पहले तुम्हारे ऊपर बोझ आता है कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने का, ओके। सो दिस इज यू, एंड यू आर सडनली बम्बार्डेड विद सम न्यू सब्जेक्ट, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स, ओके, अप्लाइड मैथमेटिक्स। देन एक मिनट, हाँ, उसके बाद BEE, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, engineering mechanics, engineering physics, workshop, engineering chemistry, and C programming, a coding subject, ठीक है। C programming। अभी क्या होता है, ये सब सब्जेक्ट तो तुमको पढ़ना ही है इन सेमेस्टर 1 ऑफ योर इंजीनियरिंग, ये सब तुमको पढ़ना है। कितने सब्जेक्ट है देखो, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। कोई जो कॉलेजेस में एक और भी सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, जैसे उसमें सोशल स्टडीज जैसा होता है, वो भी पढ़ना होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 8 सब्जेक्ट्स तुमको पढ़ने हैं। चलो ये ठीक है, बट उसके साथ साथ ना 75% अटेंडेंस इज कंपल्सरी इन ऑल द कॉलेजेस, ठीक है। तो तुमको कॉलेज हर रोज जाना है, ऑलमोस्ट एवरी डे जाना है, फ्रॉम लेट्स से 9 AM to 5 PM। On top of that, the college teaching in your college
mostly will not be up to the mark. So if you ask any of your seniors, कि कॉलेज का टीचिंग कैसे होता है, ओके, तो वो लोग तुमको बोलेंगे कॉलेज में कोई कुछ पढ़ाता नहीं है. So engineering is either self study or it is seeking professional help. Okay, and don't trust us when we say this. Okay, please ask this to your seniors, या फिर तुम्हारे भाई बहन ऑलरेडी कॉलेज में होंगे, उनको तुम पूछ सकते हो. ठीक है. उसके बाद 45 डेज के बाद ना आएगा तुम्हारा यूनिट टेस्ट 1, जिसको T1 बोलते हैं. एंड 90 डेज के बाद तुमको देना पड़ेगा T2, यूनिट टेस्ट 2. फिर तुमको बहुत सारे असाइनमेंट्स लिखने पड़ेंगे. असाइनमेंट्स का मतलब जो कॉलेज टीचर्स हैं वो तुमको कुछ सिखाएंगे तो नहीं, बट तुमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देंगे, क्वेश्चंस देंगे, जिसको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा. ओके. अब होता क्या है, ध्यान से सुनना. हाँ, होता क्या है कि इंजीनियरिंग इज अ कंटिन्यूअस असेसमेंट सिस्टम. उसका मतलब क्या है कि जो भी मार्क्स तुम यहाँ स्कोर करोगे, या नहीं करोगे, जो भी, ठीक है, वो तुम्हारे फाइनल मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होगा. ओके. ऐसा नहीं है कि लास्ट में सिर्फ एक ही एग्जाम होता है और उसका ही मार्क्स आता है, ऐसा नहीं है. ठीक है. अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि टीचर्स तुमको ज्यादा कुछ सिखाएंगे तो नहीं, बट दे विल एक्सपेक्ट यू टू डू द असाइनमेंट्स ऑन योर ओन. तो आइडियली क्या होता है कि पूरे क्लास में एक बंदा बेचारा असाइनमेंट करता है एंड बाकी सब उसको छापते हैं. बट टीचर्स को ये पता होता है, तो जो ओरिजिनली करता है उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जो कॉपी करता है उनको नहीं मिलते हैं. एनीवे, उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट तुम्हारा सेमेस्टर बहुत शॉर्ट होगा, सिर्फ 3.5 महीने का. तुम्हारे कॉलेज खुलेगा अप्रोक्सीमेटली इन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, और तुम्हारा जो फाइनल एग्जाम होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10th ऑफ December. So you will get hardly 3.5 months to do all this. ठीक है. ऑन टॉप ऑफ इट लॉन्ग ट्रैवलिंग आवर्स. ओके, यानी तुमको ऑन एन एवरेज 1 घंटा ट्रैवल करना ही पड़ेगा. अगर तुम बोरली में रहते हो, तुमको अगर डीजे संग भी मिलता है, तो तुम ना थोड़ी बोलोगे, तुम ये थोड़ी बोलोगे नहीं मैं डीजे संग भी नहीं लूंगा, मैं बोरली में रहता हूँ तो मैं सेंट फ्रांसिस लूंगा. ऐसा तो तुम नहीं करोगे ना. तो उतना ट्रैवल करने के लिए 1 घंटा तो तुमको लगने ही वाला है, तो पूरे दिन का 2 घंटा हो गया. अभी ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है ये कि जो स्टूडेंट होता है ना, वो बेचारा हिल जाता है. एंड मेनी अ टाइम्स स्टूडेंट एंड्स अप गेटिंग एन ATKT. ATKT का फुल फॉर्म होता है अलाउड टू कीप टर्म्स. उसका मतलब होता है द स्टूडेंट ऑफन फेल्स इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और मोर देन वन सब्जेक्ट. नाउ यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ प्रोमिनेंट कोचिंग क्लासेस. प्लीज ध्यान से सुनना, हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं. आई एम श्योर तुमको KT नहीं आएगा, ठीक है, but our aim is not to avoid a KT. Why? Because simply passing engineering is not enough. You are supposed to pass it with good grades. वो ज्यादा important है. ठीक है. Good grades का मतलब एटलीस्ट 10 पॉइंटर और 9 पॉइंटर. ये पॉइंटर क्या होता है इसके बारे में हम कल बात करेंगे. ठीक है. तो इंजीनियरिंग में अगर तुमको 10 पॉइंटर नहीं आता है, 9 पॉइंटर नहीं आता है ना, तो इंजीनियरिंग करके कुछ ज्यादा मतलब नहीं है. ट्रस्ट मी, एंड विल टॉक अबाउट दिस टुमारो. ओके. नाउ गेटिंग दिस 10 पॉइंटर 9 पॉइंटर, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट? पूरे लाइफ तुमको शायद 90% आता था, 80% आता था, तो अभी ये 10 पॉइंटर 9 पॉइंटर इतना डिफिकल्ट क्यों है? तो ये समझने के लिए ना तुम अपने सिचुएशन को, ये जो सिचुएशन है ना, इसको 12th से कंपेयर करो. 12th से कंपेयर करो. चलो, नाउ आई वांट सम आंसर्स फ्रॉम यू. प्लीज गिव मी द आंसर्स. ओके, प्लीज, आई वांट सम आंसर्स. लास्ट 5 मिनट बचे हैं सेमिनार के. मुझे एक बात बताओ कि 12th स्टैंडर्ड में तुम्हारा कॉलेज में कितना अटेंडेंस होता था? बताओ कितना अटेंडेंस था तुम्हारा कॉलेज में 12th स्टैंडर्ड में? बताओ कितना था अटेंडेंस, बताओ. So I am assuming your attendance was almost 0%, 0%, your 75%. हाँ, 12th स्टैंडर्ड में कॉलेज तो तुम जाते नहीं थे, क्लासेस जाते थे, बट तुम्हारा जो क्लासेस का टीचिंग था वो टॉप नॉच था, वो बेस्ट था. तो क्लासेस में जो तुम 6 घंटा जाते थे ना, 6 घंटा, वो इन्वेस्टमेंट था. दैट वाज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम. बट कॉलेज में वैसा नहीं होगा. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉन्ग ट्रैवलिंग आवर्स. जब तुम 11th 12th में थे, तुम्हारे क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली घर के नजदीक थे. अभी ऐसा नहीं होगा. एंड सबसे 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 बड़ा फैक्टर ये है शॉर्ट सेमेस्टर. तुमको CET का प्रिपरेशन करने के लिए, JEE का प्रिपरेशन करने के लिए ऑलमोस्ट 2 साल मिले, 2 साल. अब तुमको मिलने वाला है 3.5 महीना. ओके.
And this is precisely the reason that getting a 10 and 9 pointer is so difficult in engineering. Please remember one thing. Engineering में कहावत है कि the first year of the engineering is 50% of the engineering. Okay? उसके बाद ना तुम यूज टू हो जाओगे, बट जो भी तुम बूफ अप करोगे ना वो फर्स्ट ईयर में ही करोगे. और ये तुम किसी को भी पूछ लो, तुमको ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनका फर्स्ट ईयर में रिजल्ट बहुत खराब है बट बाद में ठीक हो गया. ओके, बट वाइसा वर्सा तुमको कोई नहीं मिलेगा, वाइस वर्सा नहीं मिलेगा. एंड फर्स्ट ईयर में अगर तुमको रिजल्ट्स खराब आए ना तो उसका रेपरकेशंस लास्ट तक होता है, जो हम बाद में बात करेंगे. एनीवे, now I'll just take 2 minutes to explain you how we can help you over here. So every year we conduct vacation batches in Borivali and Vile-Parle for autonomous, non-autonomous, and even private universities. Okay. Please understand that there are two types of batches. एक होता है vacation batches and एक होता है regular batches. Okay. अब कैसा है ना कि तुमको अगर engineering coaching नहीं करनी है ना तो मत करो. That's your prerogative. तुमको इंजीनियरिंग कोचिंग कोई और क्लासेस से करनी है चलेगा, बट नो मैटर वेयर यू ज्वाइन क्लासेस फॉर इंजीनियरिंग, प्लीज ज्वाइन अ वेकेशन बैच एंड नॉट अ रेगुलर बैच. अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो इसको समझने के लिए आई जस्ट नीड 1 minute टू एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट. वेकेशन बैच ना स्टार्ट होता है आफ्टर योर सीईटी रिजल्ट्स. ओके, एंड वो एंड होता है बिफोर योर कॉलेज स्टार्ट्स. सो वेकेशन बैच में हम लोग क्या करते हैं, ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन खत्म कर देते हैं इन द वेकेशन. तो उसके वजह से बहुत बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि जब कॉलेज स्टार्ट होता है ना तो तुमको क्लासेस आने का जरूरत नहीं है, मैक्सिमम हफ्ते में एक ही दिन आना पड़ता है. वेयर एज रेगुलर बैच में तुमको हफ्ते में 4 दिन क्लासेस आना पड़ेगा. अच्छा, और 4 दिन कौन से टाइम पे आना पड़ता है पता है तुमको? कॉलेज तुम जाओगे टिल 5 PM, टिल 5 PM क्लासेस तुमको आना पड़ेगा 6:30 PM to 9:30 PM. एंड दैट इज वेरी 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 हेक्टिक इफ यू डू इट फॉर 4 days अभी. बट फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि तुम रियलाइज करोगे कॉलेज में तुमको कोई इतना हेल्प नहीं मिल रहा है एंड इट्स अ केओस, यू विल बी इन अ बैड स्टेट. एनीवे, वेकेशन बैचेस का और फायदा क्या होता है कि पूरा पोर्शन खत्म हो जाता है. तो जो असाइनमेंट्स है, असाइनमेंट्स ओके, फिर जो T1 T2 है ओके, उसके लिए यू आर वेल प्रिपेयर्ड. यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू राइट द असाइनमेंट एंड अदर्स विल टेक असाइनमेंट फ्रॉम यू. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि अगर सब कुछ वेकेशन में हो गया तो ड्यूरिंग द नॉर्मल सेमेस्टर आराम से घर बैठ के तुम रिवीजन कर सकते हो. इनफैक्ट तुम कोई भी क्लासेस देखो ना, तो उनके जो टॉपर्स होते हैं दे आर ऑफन फ्रॉम वेकेशन बैचेस. एनीवे, सो नाउ इफ यू आर कन्विंस कि तुमको कोई वेकेशन बैच ज्वाइन करना चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एटलीस्ट ट्राई एंड अटेंड अवर SAS. अब SAS का फुल फॉर्म है सब्जेक्ट अवेयरनेस सेशन. ये जो सब्जेक्ट अवेयरनेस सेशन है ना, ये बेसिकली हमारे डेमो लेक्चर्स हैं which we are going to conduct on 30 and 31st May. In these demo lectures, we'll tell you about the different subjects of engineering. So you'll get to know the subjects of engineering and also our teachers The SAS is free to attend for everybody. Okay, I mean the students. Okay, parents so obviously इसमें नहीं आएंगे, students आएंगे. So it is free to attend for the students. Okay. एंड उसके बाद अगर तुमको वेकेशन बैच लगाना है तो तुम लगा सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, इट्स अप टू यू. ओके, सो हियर वी फिनिश द part 1 ऑफ द वेबिनार. द वेबिनार का जो part 1 इधर खत्म हो जाता है. सो part 2 अब हम करेंगे ऑन वेंसडे. ओके, दैट इज टुमारो 9 to 9:45 PM. एंड part 3 जो है वो हम करेंगे ऑन फ्राइडे अगेन फ्रॉम 9 to 9:45 PM. ठीक है. सो ये अपना part 2 part 3 का शेड्यूल है. ओके, so that's it from my side. Okay, thank you very much for attending and I hope to see you tomorrow and on Friday. Okay, so let me just pause the recording and then if you have any queries you can ask me the queries. Just give me a minute.